Hello everyone, how are you? Today we are going to continue this particular topic, mechanical properties of fluids, and in today's lecture we are going to see about angle of contact. Okay, so before starting that, let me recall you something. While performing the experiment in the chemistry lab, you might have seen that when you are filling any chemical or anything in this particular tube, which we called as test tube, then the shape of the free surface of the liquid in this test tube is not like this straight. Okay, the shape of the free surface is not like this. It will not be straight like this. So how it looks like when you see, it will be something like this, a curve like this. Okay, अगर आपने ध्यान से ऑब्जर्व किया होगा, then you might have seen that this particular shape is not a straight but it is a curve like this. So you might have seen this as a curve. Now why it is a curve? First question is this. Another question is, when you are filling this test tube with a mercury, suppose this is kerosene, okay, if you are filling this test tube with mercury, then you must see the shape of the free surface of the liquid will be like this. जिस तरह यहाँ पे ये concave upward है, you can see it as a convex upward when you are filling this with mercury. Why this happens? We are going to learn about this. Also, this shape, concave upward, convex downward, these shapes are called as meniscus. This is called as meniscus. This is called as meniscus. The shape of the free surface of the liquid. This is called as meniscus. Also, if I draw a tangent here at free surface, मैंने यहाँ पे tangent draw किया, then this angle between this tangent and this solid surface denoted by theta is called as angle of contact. This angle is called as angle of contact. Similarly here, if I draw a tangent like this at this surface, then the angle between this tangent and this solid surface, denoted by theta, and this theta is the thing but your angle of contact. You can clearly see that in this case the angle of contact theta is acute angle. You can see it as less than 90 degree, while here the angle of contact theta is obtuse angle. This theta is clearly greater than 90 degree. Now the question is, why this angle theta is less than 90, or in simple word if I say, why angle of contact is acute here and why angle of contact is obtuse here. Another question is, can I have the angle of contact like this? यहाँ पे एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट कितना होगा? एंगल बिटवीन दिस सरफेस एंड दिस सरफेस, यहाँ पे कितना एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट 90. क्या एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट 90 हो सकता है? या क्या एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट थीटा 0 हो सकता है? These are all the questions. Okay, so first and foremost question is, why we are able to see this kind of meniscus on the free surface of the liquid. Second question is, what is the definition of angle of contact. Third and last question is, how these angle of contacts are different for different substances, different materials. Okay, so first of all let us understand the definition of angle of contact. So what all of you have to do is put up the heading in your notebooks, that is angle of contact. I am writing definition over here. The definition is angle between tangent drawn to the free surface of the liquid and the surface of the solid at the point of contact
measured within the liquid is called as angle of contact. अब इस डेफिनेशन को आप देखेंगे तो इसमें बहुत सारे टर्म्स हैं छोटे छोटे, हम सारे टर्म्स को अलग अलग डायग्राम के साथ समझते हैं। सबसे पहले द एंगल बिटवीन टेंजेंट ड्रॉन टू द फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड। पहले एक लिक्विड की कोई भी फ्री सरफेस लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हियर आई एम हैविंग अ बीकर लाइक दिस एंड लेट्स से आई एम हैविंग अ फ्री सरफेस ओवर हियर and the shape of the water at this end is like this. Okay, now we have to draw the angle. Okay, I want to find angle between what? Tangent drawn to the free surface of the liquid. ये liquid की free surface है, मैं इस part पे यहाँ पे tangent draw कर रहा हूँ, ये मेरा क्या बन गया? Tangent. Okay, तो angle between what? This tangent and the surface of the solid. ये solid beaker है, तो इस सॉलिड सरफेस के बीच का एंगल बिटवीन दिस, द एंगल बिटवीन टेंजेंट ड्रॉन टू द फ्री सरफेस एंड द सरफेस ऑफ द सॉलिड। ठीक है, एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये लिक्विड इस सॉलिड के साथ कौन से पॉइंट पे टच कर रहा है? दिस पॉइंट। इसीलिए हमने टेंजेंट को यहां ड्रॉ किया है, वरना आप बोलेंगे सर ये भी तो फ्री सरफेस है, टेंजेंट यहां भी तो ड्रॉ कर सकते थे। नहीं, टेंजेंट कहां? एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। दिस एंगल इज वेयर? At the point of contact. Also measured within the liquid. This angle should be within the liquid and not outside of the liquid. Otherwise अगर आप देखेंगे तो ये टेंजेंट और इस सॉलिड सरफेस के बीच का एंगल तो ये भी है, ये एंगल, लेकिन क्या ये एंगल ऑफ कांटेक्ट है? नहीं। कौन सा एंगल ऑफ कांटेक्ट माना जाएगा? विद इन द लिक्विड। अच्छा, ये भी तो एंगल है जो सॉलिड की सरफेस और टेंजेंट के बीच में है, लेकिन क्या इसको एंगल ऑफ कांटेक्ट मान सकते हैं? नहीं। व्हाई? बिकॉज द एंगल शुड बी विद इन द लिक्विड। क्या इसको एंगल ऑफ कांटेक्ट माना जा सकता है? ये भी तो टेंजेंट और सॉलिड सरफेस के बीच में है, नहीं मान सकते। व्हाई? बिकॉज द एंगल शुड बी विद इन द लिक्विड। दैट इज व्हाई द एंगल ऑफ कांटेक्ट इज द एंगल बिटवीन द टेंजेंट ड्रॉन टू द फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड and the surface of the solid at the point of contact measured within the liquid. This is called as angle of contact and we will be denoting it by theta. उसी तरह अगर हम इस ग्लास बीकर के अंदर मर्क्यूरी को फिल करते हैं, हम किसको फिल करते हैं? मर्क्यूरी। तो मर्क्यूरी का एंगल ऑफ कांटेक्ट ऑब्ट्यूज होता है, वी विल बी गेटिंग लाइक दिस। तो हम यहां पे अगर ड्रॉ करें टेंजेंट, दिस इज द टेंजेंट, ओके, टी डिनोटेड बाय टी, then angle between this tangent and the solid surface कहाँ पे मेजर करना है? इनसाइड द लिक्विड। तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है और ये इनसाइड ऑफ द लिक्विड वाला पार्ट है, तो ये थीटा मेरा बन जाएगा एंगल ऑफ कांटेक्ट। सो डिड यू गेट द डेफिनेशन? द एंगल बिटवीन टेंजेंट ड्रॉन टू द फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड एंड द सरफेस ऑफ द सॉलिड एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मेजर्ड इनसाइड द लिक्विड या विद इन द लिक्विड इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ कांटेक्ट। Okay, now this angle of contact is not only acute, it is not only obtuse, it can be acute, it can be obtuse, it can be 90 mostly नहीं होता, it can be 0 also. Okay, now we will be see one by one when it will be acute, when it will be obtuse and when it is going to be 0. Now put up the heading acute angle of contact. So you can see acute angle of contact या concave meniscus, और फिर मैंने आगे उसका एग्जाम्पल लिखा है केरोसिन इन अ ग्लास बॉटल। दैट मीन्स इफ यू फिल केरोसिन इन अ ग्लास बॉटल then the angle of contact of kerosene with glass is acute. Also the meniscus which will be formed with acute angle is always a concave meniscus. अब हम लोग समझते हैं कि इसके पीछे रीज़न क्या है, ये मेनिस्कस बनने के पीछे रीज़न क्या है। सबसे पहले आप ये समझिए कि मान लो मेरे पास ये ग्लास बॉटल है और इस ग्लास बॉटल के अंदर हम लोगों ने किसको फिल किया? हम लोगों ने मान लेते हैं हमने फिल किया किसको? केरोसिन को। तो जब आप केरोसिन को फिल करेंगे तो केरोसिन यहाँ पे बनाएगा क्या? कॉनकेव मेनिस्कस। ये ऐसा हो जाएगा, एंड में इसकी सरफेस थोड़ी सी ऐसी हो जाएगी। तो हमने क्या किया, ये हमारा जो ग्लास बीकर है ये सॉलिड है, ये हमारा जो लिक्विड है दिस इज केरोसिन। हमने सिर्फ इतने से पार्ट को लेकर यहाँ ड्रॉ किया समझने के लिए। देखो इसके ऊपर यहाँ पे क्या है? एयर है,
ये हमारा क्या है, लिक्विड है, जो भी हो, केरोसिन हो या और कोई लिक्विड जो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट एक्यूट बनाता है वो हो, और यहाँ पे हमारा क्या है, सॉलिड सरफेस है। बिल्कुल इसी डायग्राम को मैंने यहाँ पे बनाया है समझने के लिए अलग से। ओके, तो अब इस डायग्राम पे आप फोकस करेंगे। जस्ट सी हियर एंड लेट अस कंसिडर वन मॉलिक्यूल, दिस मॉलिक्यूल A विच इज एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। अब आप ये देखिए कि इस मॉलिक्यूल A पर कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं। अच्छा, सबसे पहला फोर्स तो इस मॉलिक्यूल A का वेट है जो वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट होगा, बट द वेट ऑफ दिस मॉलिक्यूल A इज वेरी स्मॉल एंड दैट इज व्हाई दिस वेट, द फोर्स ड्यू टू इट्स वेट इज नेग्लेक्टेड। इसका वेट बहुत स्मॉल है, बहुत छोटा है, वेट को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। नाउ दिस स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, ये जो सर्कल मैंने ड्रॉ किया है ए मॉलिक्यूल के आसपास, दिस सर्कल इज नथिंग बट स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। ओके, लास्ट लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस क्या होता है। तो इसका आधा स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस तो सॉलिड के अंदर है, इसका आधा थोड़ा सा स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस इसका एयर के अंदर है, और थोड़ा सा इसका लिक्विड के अंदर है। ओके, सो यू कैन इजीली सी that if the sphere of influence, half of the sphere of influence is there in the solid, then this solid particle will be attracting this molecule towards them, and that is why the force of adhesion will be acting at this molecule. मैंने FA से किसको डिनोट किया, मैं यहां पे लिख देता हूं साइड में, FA is nothing but force of adhesion between solid and liquid molecule. Now this sphere of influence, the part of the sphere of influence lies inside the liquid, that is why the liquid molecule which are there here, they will be attracting this molecule towards them, and because of them a force, and this force will be cohesive force, will be acting like this. This is force of cohesion. तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ FC is nothing but force of cohesion या कोहेसिव फोर्स। यह लास्ट लेक्चर में लोग पढ़ चुके हैं, अधेसिव फोर्स, कोहेसिव फोर्स। ओके, कोहेशन बिटवीन लिक्विड एंड लिक्विड मॉलिक्यूल्स। और कौन सा फोर्स एक्ट होगा इस पे, एक इसका वेट जो वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट होगा, लेकिन हम लोग उसको लेंगे नहीं। व्हाई? बिकॉज द वेट ऑफ दिस मॉलिक्यूल इज वेरी स्मॉल एज कंपेरेटिव टू कोहेसिव एंड अधेसिव फोर्स, दैट इज व्हाई विल बी नेग्लेक्टिंग। ठीक है, ओके। नाउ कैन यू टेल मी व्हाट विल बी द रिजल्टेंट ऑफ दिस टू फोर्सेस। एक फोर्स इस तरफ लग रहा है और दूसरा फोर्स इस तरफ लग रहा है। आप इजीली देख सकते हो दिस adhesive force due to solid molecule is very large. Since this adhesive force is greater, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, the force of adhesion FA is greater than FC. Since this force is greater, and that is why the resultant of these two forces, the resultant of these two forces will be acting like this, and this resultant is denoted by FR. ये फोर्स ऑफ अधेशन और ये फोर्स ऑफ कोहेशन का जो रिजल्टेंट है दैट विल बी इनसाइड द सॉलिड एंड डिनोटेड बाय FR। इससे आपको क्या पता चला कि इस फ्री सरफेस पर जो रिजल्टेंट फोर्स लग रहा है इट इज इनसाइड द सॉलिड। ओके, लेकिन हमारा मोटिव है फाइंड करना एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, और एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट फाइंड करने के लिए मैंने अभी लिखा था दिस इज द एंगल बिटवीन टेंजेंट ड्रॉन एट द फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड। क्या ये लिक्विड की फ्री सरफेस है? तो सबसे पहला काम हमारा ये रहेगा कि हम इस फ्री सरफेस पर यहां पर ड्रॉ करेंगे एक टेंजेंट। ये जिसको मैंने रेड कलर से ड्रॉ किया है ये हमारा क्या है, टेंजेंट। इतना समझ गए आप? अगर आप इतना समझ गए तो आगे की कहानी एकदम आसान है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस टेंजेंट T और इस
लिक्विड सॉलिड की सरफेस, इनके बीच में हम लोग ड्रॉ करेंगे एंगल और इस एंगल को कह देंगे थीटा विच इज एंगल ऑफ कांटेक्ट। अब यहां पे एक बात समझो कि ये पानी ऊपर क्यों चढ़ा। बात ध्यान से सुनना। देयर इज वन कंडीशन इन केस ऑफ स्टैटिक्स। जब भी हम फ्लूइड के स्टैटिक्स की कंडीशन की बात करेंगे तो एक कंडीशन है, अगर कोई फ्लूइड का फ्री सरफेस रेस्ट पे रहना चाहता है, स्टेबल इक्विलिब्रियम में रहना चाहता है, तो उस पर कोई भी टेंसाइल फोर्स एक्ट नहीं होंगे। द फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड कैन नॉट सस्टेन टेंसाइल स्ट्रेस। अगर वो इक्विलिब्रियम में है, दैट मीन्स इफ अ लिक्विड सरफेस वांट्स टू बी इन इक्विलिब्रियम, देन एट एनी पार्ट ऑफ द लिक्विड सरफेस द रिजल्टेंट फोर्स शुड बी परपेंडिकुलर टू दैट सरफेस। सुनो यहां पे, मान लो एक बीकर है छोटा सा और ये फ्री सरफेस है। इस फ्री सरफेस का कोई भी पार्ट ले लो, ये पार्ट, ये पार्ट, ये पार्ट, ये पार्ट, कोई भी पार्ट, इस पर्टिकुलर पार्ट पर अगर कोई रिजल्टेंट फोर्स लग रहा है, दैट शुड बी नॉर्मल टू इट, दैट शुड बी परपेंडिकुलर टू इट। व्हाई? दिस इज द कंडीशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम। इट कैन नॉट सस्टेन टेंसाइल स्ट्रेसेस। कोई भी फोर्स रिजल्टेंट यहां इस तरफ नहीं होगा। द फोर्स विल बी परपेंडिकुलर टू दिस, अगर ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में है तो ही। ओके, इतनी बात समझ गए। अब यहां पे आ जाओ, ये लिक्विड भी अपने आप को स्टेबल इक्विलिब्रियम में रखना चाहता है, करेक्ट, लेकिन इस पे रिजल्टेंट फोर्स कहां लग रहा है? आप देख सकते हो रिजल्टेंट फोर्स लग रहा है सॉलिड की तरफ। तो ये लिक्विड की फ्री सरफेस अपने आप को इस तरह से बेंड करेगी कि उस फ्री सरफेस पे ड्रॉ किया गया टेंजेंट इस रिजल्टेंट फोर्स से परपेंडिकुलर हो जाए। इस लिक्विड सरफेस, फिर से एक बार सुनो, ये लिक्विड सरफेस अपने आप को स्टेबल इक्विलिब्रियम में रखना चाहती है क्योंकि इस पे कोई दूसरा फोर्स लग रहा नहीं है। हमने खाली केरोसिन को सॉलिड के ग्लास ट्यूब के अंदर फिल कर दिया। तो ये लिक्विड की सरफेस क्या करेगी? इस रिजल्टेंट फोर्स के साथ इस तरह से ओरिएंटेशन बनाएगी कि इस पे ड्रॉ किया गया टेंजेंट इस रिजल्टेंट फोर्स के साथ परपेंडिकुलर हो। दैट मींस दिस टेंजेंट एंड दिस नॉर्मल रिजल्टेंट फोर्स विल बी ऑलवेज परपेंडिकुलर टू दिस। तो ऐसा करने के लिए लिक्विड सरफेस को क्या करना पड़ेगा? इट विल बी पाइल अपवर्ड्स। एंड इसीलिए किसी भी लिक्विड जो कि एंगल ऑफ कांटेक्ट एक्यूट बनाता है, वो क्या करेगा? इट विल बी पाइल अप टुवर्ड्स द लिक्विड सॉलिड सरफेस एंड इट विल मेक अ कॉन्केव मेनिस्कस। ये जो मेनिस्कस बना हमारा, ये कौन सा मेनिस्कस बना? दिस मेनिस्कस, मैं लिखता हूं यहां पे, मेनिस्कस इज कॉन्केव अपवर्ड, कॉन्केव अपवर्ड। ऑल्सो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट इज एक्यूट। अच्छा, जब भी किसी लिक्विड का एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट इस तरह से होगा, एक्यूट होगा, या इसका मेनिस्कस कॉन्केव बनेगा, दिस लिक्विड वेट्स द सॉलिड। यानी ये लिक्विड को अगर आप सॉलिड के साथ अगर रखोगे तो ये सॉलिड की सरफेस को वेट करेगा। आप बोलेंगे सर सारे ही लिक्विड सॉलिड को वेट करता है, ऐसा कौन सा दुनिया का लिक्विड है जो सॉलिड को वेट नहीं करता? नहीं, ऐसे भी लिक्विड है, हम पढ़ेंगे अभी। हम मर्क्यूरी की बात करेंगे। मर्क्यूरी को अगर आप किसी सॉलिड सरफेस पे डालोगे तो वो ड्रॉप बना देगा। इट मेक्स अ ड्रॉप, इट डज नॉट कंप्लीटली वेट द सॉलिड। ठीक है, ओके, तो टेंशन मत लेना। दिस लिक्विड, द लिक्विड wets the solid surface. So this was all about acute angle of contact, concave meniscus, and उसका एग्जाम्पल है केरोसिन इन अ ग्लास बॉटल। और भी एग्जाम्पल्स पॉसिबल है, लेकिन ये एक एग्जाम्पल है कि अगर केरोसिन को ग्लास बॉटल में आप डालेंगे तो वो कॉन्केव मेनिस्कस बनाएगा। ओके, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं ऑब्ट्यूज एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट से। ओके, तो आप लोग क्या करो, पॉज करो स्क्रीन को, ये सब कॉपी करो। ओके, नाउ वी आर स्टडिंग ऑब्ट्यूज एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। जब भी एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट ऑब्ट्यूज बनेगा, देन द मेनिस्कस विल बी कॉन्वेक्स मेनिस्कस, लाइक दिस। द मेनिस्कस विल बी कॉन्वेक्स
एंड द फेमस एग्जाम्पल इज मर्क्यूरी इन अ ग्लास बॉटल। अगर मर्क्यूरी को ग्लास बॉटल में फिल करोगे तो आपको जो मेनिस्कस देखने को मिलेगा दैट विल बी कॉन्वेक्स अपवर्ड, एंड ऑल्सो द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट इन दैट केस विल बी ऑब्ट्यूस। अब ये कैसे होता है ये समझिए आप। ये सेम डायग्राम अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा, ये सॉलिड की सरफेस है और यहाँ पे लिक्विड है, लेकिन अब हमने लिक्विड कौन सा डाला हुआ है, मर्क्यूरी टाइप लिक्विड, वो लिक्विड जिसका एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट ऑब्ट्यूस होता है, या उस जैसा कोई और लिक्विड। अब उसी तरह हम लोग यहाँ पे एक मॉलिक्यूल कंसिडर करेंगे, इस मॉलिक्यूल का नाम हम लोग दे देते हैं, लेट्स से दिस इज मॉलिक्यूल ए, ओके, और ये इसका स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, ये इस मॉलिक्यूल का स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है। नाउ सी व्हाट हैपेंस, यहां पे सॉलिड सरफेस है तो सॉलिड के मॉलिक्यूल, यहां पे लिक्विड के मॉलिक्यूल और यहां ऊपर एयर के मॉलिक्यूल, क्योंकि ये फ्री सरफेस है, ठीक है। अब इस लिक्विड में क्या होता है, सबसे पहले ये देखिए फोर्स ऑफ अडेशन, ये सॉलिड के मॉलिक्यूल इसको यहां पे खींचेंगे फोर्स ऑफ अडेशन Fa से, और फोर्स ऑफ कोहेशन Fc से इसको यहां पे लिक्विड के मॉलिक्यूल खींचेंगे लाइक दिस, फोर्स ऑफ कोहेशन Fc। लेकिन यहां पे क्या होता है, द फोर्स ऑफ कोहेशन Fc ड्यू टू लिक्विड मॉलिक्यूल्स इज ग्रेटर देन फोर्स ऑफ अडेशन Fa। प्रीवियस केस में क्या हो रहा था, फोर्स ऑफ अडेशन वाज ग्रेटर, बट हियर इफ द फोर्स ऑफ कोहेशन Fc इज ग्रेटर देन फोर्स ऑफ अडेशन Fa, देन ऑब्वियसली रिजल्टेंट कहां पे लाई करेगा, इन दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट कहां आएगा, क्योंकि देखो Fc बड़ा है Fa छोटा है, तो ये Fc बड़ा है तो ये जो रिजल्टेंट आएगा दैट रिजल्टेंट विल बी इनसाइड द लिक्विड एंड दिस इज डिनोटेड बाय Fr, ओके। अंदर क्यों आ रहा है, बिकॉज Fc इज ग्रेटर, Fa इज स्मॉल। नाउ अगेन कम टू द सेम कंडीशन, मैंने अभी कंडीशन बताया था कि अगर कोई भी लिक्विड की सरफेस स्टेबल इक्विलिब्रियम में रहना चाहती है, देन द नॉर्मल फोर्स एक्टिंग ऑन द फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड शुड बी ऑलवेज परपेंडिकुलर टू दैट। किसी भी पार्ट ऑफ द लिक्विड में अगर वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में है तो वो फ्री सरफेस कैसी रहेगी, रिजल्टेंट फोर्स से परपेंडिकुलर। अब यहां देखिए इस मॉलिक्यूल पे या इस फ्री सरफेस पे रिजल्टेंट फोर्स कहां लग रहा है, रिजल्टेंट फोर्स यहां पे लग रहा है, करेक्ट। तो ये जो फ्री सरफेस है, अगर इस फ्री सरफेस पे मैं टेंजेंट ड्रॉ करता हूं लाइक दिस, लेट मी ड्रॉ टेंजेंट, दिस इज अ टेंजेंट ड्रॉन एट द फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड डिनोटेड बाय T। तो सिंस द रिजल्टेंट फोर्स इज लाइक दिस एंड दिस लिक्विड सरफेस it wants to be in stable equilibrium, and that is why it will bend itself in such a way that this free surface should be perpendicular to Fr। अब अगर ये फ्री सरफेस Fr से परपेंडिकुलर रहना चाहती है, then what will happen, at the end of या at the border of solid and liquid, this liquid will try to creep downward, this liquid will try to creep downward against the solid surface, and hence the meniscus which is formed is obtuse, yeah, the meniscus which is formed is convex meniscus। and angle of contact, अच्छा angle of contact किसे कहेंगे, angle between tangent drawn to the free surface and the liquid surface, ठीक है, सॉरी solid surface। तो ये टेंजेंट है और ये सॉलिड की सरफेस है, देन दिस विल बी योर एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट थीटा। तो क्या आपको बात समझ में आ गई, ये जो रिजल्टेंट फोर्स है ये लिक्विड के अंदर है, तो अगर ये लिक्विड के अंदर है तो ये जो सरफेस होगी ये अपने आप को इसके परपेंडिकुलर करेगी। जब ये अपने आप को यहां पर इसके परपेंडिकुलर करना चाहेगी तो उसके नतीजे में क्या होगा, this liquid creeps in downward direction against the solid surface and it will look like this, and this type of meniscus is called as convex meniscus। तो हम लोग यहां पे क्या लिखेंगे, the meniscus which is formed is convex upward, it is convex upward। अच्छा, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट कैसा बना, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट हमारा कैसा बन गया, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट इज ऑब्ट्यूस। देखो ग्रेटर देन 90 है कि नहीं,
the angle of contact is greater than 90 and that is why it is obtuse angle. And since this angle of contact is obtuse, then this liquid does not wet the solid. हम लोग क्या लिखेंगे? The liquid does not wet the solid. यानी ये सॉलिड नहीं बना सकता, सॉलिड को वेट नहीं कर सकता. जैसे ही आप सॉलिड के सरफेस पे इसको डालोगे तो इसका सरफेस टेंशन इतना ज्यादा है, डेंसिटी इतनी ज्यादा है, द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट ऑब्ट्यूज है, इसकी वजह से ये फॉरन ड्रॉपलेट्स बना लेगा. इट विल फॉर्म द ड्रॉपलेट्स एंड इट विल नॉट बी एबल टू वेट द सॉलिड सरफेस. ठीक है, तो एक्यूट एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट हमने देख लिया, ऑब्ट्यूज एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट हमने देख लिया. आप इस पार्ट को कॉपी करें, हम लोग अभी देखेंगे जीरो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट. ओके, सो कॉपी दिस फास्ट. नाउ वी विल टेक अनदर एग्जांपल ऑफ जीरो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट. सी व्हाट हैपेंस. द एग्जांपल ऑफ जीरो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट इज हाईली प्योर वाटर इन अ ग्लास ट्यूब. इफ see the water is there but the water should be highly pure, there should not be impurity in the water. उससे समझ में आ सकता है कि अगर वाटर में इम्प्यूरिटी होगी तो सरफेस टेंशन वाटर का मेंटेन नहीं रहेगा, चेंज हो जाएगा. इनफैक्ट किसी भी चीज़ का, अगर किसी भी चीज़ में आप किसी कंटामिनेशन को डाल दो, डस्ट पार्टिकल को डाल दो या किसी और चीज़ को मिला दो किसी लिक्विड में, तो उसका सरफेस टेंशन बदल जाता है. उसको हीट कर दो, सरफेस टेंशन बदल जाता है. ये सारी चीज़ें हम अभी नेक्स्ट टॉपिक्स आएगा आगे, इफेक्ट ऑफ इम्प्यूरिटीज़ वगैरह, उसमें हम पढ़ेंगे. बट अभी हमको क्या ध्यान रखना है, द हाईली प्योर वाटर इफ इट इज फिल्ड इन अ ग्लास बॉटल इट मेक्स जीरो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट. कैसे? यहाँ पे देखिए, हमने यहाँ पे सॉलिड की सरफेस को लिया, यहाँ पे लिक्विड फिल किया, लिक्विड हमारा हाईली प्योर वाटर है फॉर एग्जांपल, और यहाँ हमारा ऊपर एयर है. हमने एक मॉलिक्यूल को यहाँ पर कंसीडर किया, मॉलिक्यूल का नाम दिया मॉलिक्यूल नंबर ए. अब इस मॉलिक्यूल ए के साथ क्या होने वाला है वो देखिए आप. इसका जो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है ये आधे से ज्यादा कहाँ पर है, सॉलिड के अंदर है. अच्छा, इस स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस के अंदर जो वाटर के मॉलिक्यूल, लिक्विड के मॉलिक्यूल आप देख सकते हो, द लिक्विड मॉलिक्यूल्स आर वेरी स्मॉल. दीज मॉलिक्यूल्स आर वेरी स्मॉल ओवर हियर. ओके, एंड दैट इज व्हाई द adhesive force will be there, but force of cohesion is negligible. Why negligible? Because these molecules which are there in sphere of influence are very small as compared to these molecules. And since adhesive force, cohesive force को हमने neglect कर दिया, adhesive force ही वहां पर काम कर रहा है, and that is why our resultant force Fr will be exactly equal to adhesive force. Did you get this? Our resultant force Fr will be exactly equal to adhesive force and here the resultant will be like this here. मतलब इसी force of adhesion के along में हमारा क्या लाई करेगा, resultant, जिसको मैं Fr से डिनोट कर रहा हूं. Now since the resultant is here and this liquid wants to be in stable equilibrium, so what will happen? Obviously this liquid will try to make the shape over here such that the tangent drawn at the free surface should be perpendicular to Fr. तो अगर ये फ्री सरफेस है यहाँ पे और ये Fr है तो इसका टेंजेंट अप्रोक्सीमेटली अलोंग द वॉल रहेगा लाइक दिस. द टेंजेंट टू द फ्री सरफेस विल बी अप्रोक्सीमेटली लाइक दिस, जिसको मैं T से डिनोट कर रहा हूँ. एंड दिस टेंजेंट इज नथिंग बट टेंजेंट ड्रॉन एट द फ्री सरफेस. यू कैन क्लियरली सी द टेंजेंट, द एंगल बिटवीन दिस टेंजेंट एंड दिस सॉलिड सरफेस कितना है. What is the angle between this tangent and solid surface? Obviously they are overlapping each other and that is why we can write angle of contact is 0. The theta will be equal to 0 degree. Also अगर angle of contact हमारा 0 है then this liquid completely wets the solid. क्या लिखेंगे? The liquid completely वेट्स द सॉलिड. ये सॉलिड के साथ बिल्कुल, सॉलिड को बिल्कुल वेट करेगा, उसके साथ बिल्कुल चिपक जाएगा. एंड दैट इज व्हाई दिस टाइप ऑफ लिक्विड हाईली प्योर वाटर इट कंप्लीटली वेट्स द सॉलिड. ओके, तो बात समझ में आ गई अच्छे से. दिस इज ऑल अबाउट जीरो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट. ओके, तो जीरो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट क्यों बनता है? बिकॉज दिस मॉलिक्यूल ए, इट इज force of adhesion is here
and that is only the force of resultant. Why? Because cohesive forces are negligible. स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में इतने मॉलिक्यूल बचते ही नहीं है कि वो उसको अट्रैक्ट कर सके और पूरा रिजल्टेंट वहां चले जाता है। जब रिजल्टेंट वहां चले गया तो ये लिक्विड सरफेस को अपने आप को इस रिजल्टेंट से नॉर्मल परपेंडिकुलर रखना है। क्यों रखना है? स्टेबल इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए। एंड उस पर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो ऑब्वियसली वो टेंजेंट और सॉलिड के बीच का एंगल जीरो and angle of contact is zero and the liquid completely wets the solid. This was all about zero angle of contact. So copy this and we see and we study some condition about when the angle of contact will be acute, when it will be obtuse. We will be learning it by some conditions. Okay, so first of all copy this. Now consider a situation, angle of contact 90 and conditions for convexity and concavity. एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट 90 कब होगा? एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट 90 तभी हो सकता है जब लिक्विड की फ्री सरफेस, दिस इज द फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड, द एंगल बिटवीन दिस फ्री सरफेस, द टेंजेंट एट दिस सरफेस एंड दिस सरफेस शुड बी 90 डिग्री। मतलब ये जो सॉलिड की सरफेस है और ये जो लिक्विड है, इसके बीच के अगर एंगल 90 रहे तो इसको हम क्या कह सकते हैं? एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट इज 90। अब हम लोग ये देखेंगे, एंड एक्चुअली दिस इज अ हाइपोथेटिकल सिचुएशन, मोस्टली इट डज नॉट अकर. Hypothetical situation is this, and we will be looking about conditions for convexity and concavity as well. Now just see here, suppose if I want that angle of contact here should be 90 degree. अगर angle of contact को 90 रखना है मतलब tangent यहाँ पे आना चाहिए, the tangent should be here. Okay, now if the tangent is here, then normal to the tangent this resultant force should be along the solid. आप समझ रहे हो मेरी बात? If I want that angle of contact, my angle of contact is 90 degree, then obviously this Fr resultant force of this adhesion and cohesion force should be like this along the solid surface. And if the resultant force is like this, it is along the solid surface, then only the angle of contact will be 90 degree. Okay? And for this angle is 45 degree and this angle is also 45 degree. That means the resultant cohesive force Fc will be making 45 degree on either side of the resultant. So you can easily see that in this particular condition, if my Fa, force of adhesion, is equal to Fc by root 2, if force of adhesion Fa is Fc by root 2, then angle of contact is 90 degree. अब आप बोलेंगे सर ये Fc by root 2 आया कहाँ से? See here, ये जो Fa यहाँ पे है, अगर मैं Fa को यहाँ पे ले लूँ पीछे की तरफ, if Fa, I take this Fa on this side, it will become minus Fa. From this, अगर मैं Fc का रिजल्टेंट यहाँ पे ले लूँ, इफ आई टेक द रिजल्टेंट ऑफ Fc या कंपोनेंट ऑफ Fc अलोंग दिस, अगर कंपोनेंट ऑफ Fc अलोंग Fa लूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? Fc cos थीटा, दैट मीन्स Fc cos ऑफ 45, और cos 45 कितना होता है? Cos 45 is 1 upon root 2, that means I will be getting Fc by root 2. The same thing is written over here. आपको क्या याद रखना है? आपको याद रखना है कंडीशन ये है कि इफ द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, सॉरी, इफ द फोर्स ऑफ अडेशन इज इक्वल टू Fc by root 2, then angle of contact is 90 and then meniscus will be plane meniscus. Okay, now if my Fa, force of adhesion, is greater than Fc by root 2, if force of adhesion is greater than Fc by root 2, then what will happen? Then your angle of contact is acute. हमारा एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट उस वक्त एक्यूट बनेगा. एंड इफ योर Fa, force of adhesion resultant, is less than Fc by root 2, then your angle of contact will be is obtuse. तो बहुत सिंपल है ये, इसको आप सिंपल ज्योमेट्री से समझ सकते हैं. अगर रिजल्टेंट मेरा सॉलिड के अंदर लाई करता है,
सॉलिड के अंदर लाई करेगा मतलब एफ ए बड़ा है तो उस वक्त एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट मेरा बनेगा एक्यूट, और अगर ये रिजल्टेंट मेरा लिक्विड के अंदर लाई कर रहा है दैट मीन्स उस पर्टिकुलर टाइम पे हमारा जो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट बनेगा वो कैसा बनेगा, ऑब्ट्यूज। एंड इन दिस पर्टिकुलर कंडीशन व्हेन एफ ए इज एफ सी बाय रूट 2 एग्जैक्टली देन द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट विल बी 90 डिग्री। और ये हमारा, मैं यहाँ पे मेंशन कर दूँ, ये हमारा लिक्विड है, इस पार्ट में हमारा एयर है क्योंकि ये फ्री सरफेस है, और ये हमारा सॉलिड है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। अभी आज के लेक्चर में हमने क्या क्या देखा थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं शुरू से। सबसे पहले हम लोगों ने स्टार्ट किया था एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट होता क्या है। मैंने आपको एक टेस्ट ट्यूब का डायग्राम ड्रॉ करके बताया। उसके बाद हमने पढ़ा कि एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट वो एंगल है कि अगर लिक्विड की फ्री सरफेस पे टेंजेंट ड्रॉ किया जाए तो उस टेंजेंट और सॉलिड सरफेस के बीच के एंगल को एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट कहा जाता है। ये एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट एक्यूट भी हो सकता है, ऑब्ट्यूज भी हो सकता है, 90 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। अब ये एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट हमारा जो होता है ये एक्यूट कब होगा, जब उसका रिजल्टेंट सॉलिड के अंदर होगा। ऑब्ट्यूज कब होगा, जब रिजल्टेंट यहां लाई करेगा लिक्विड के अंदर। और 0 कब होगा, जब रिजल्टेंट परपेंडिकुलर होगा, यानी जो फोर्स ऑफ अधेशन है उसी के डायरेक्शन में हमारा रिजल्टेंट होगा। ये सारी कंडीशंस हमने पढ़ी। आप अपनी टेक्स्ट बुक के अंदर प्लीज जाइएगा, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट की डेफिनेशन को बाय हार्ट कीजिए, पूरा एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट वाला पार्ट पढ़िए। अगर कहीं भी आपको डाउट है तो आप मार्क करके मुझे सेंड करेंगे। इतना पार्ट आप आज प्रैक्टिस करें, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से इसको आगे फर्दर प्रोसीड करेंगे। ओके, बाय।